Hello friends, my name is Astha Singh. Today we are going to study second chapter of SCPM, Modern Business Environment. Second chapter, Modern Business Environment. A modern business environment. During the past 2 decades, business environment in many sectors have been characterized by rapid changes. The environment is ever changing and dynamic in nature. The modern business environment has changed drastically and shaped entirely in a very different manner. Now it has become a challenge for business managers to understand their business environment and formulate business plans and policies accordingly. Business technology has advanced business functions and operations to new levels. The role of accounting is one of the most reliable functions in business. The main revolution has been the transition from sellers market to buyers market. पहले क्या होता था, जो मार्केट की जो भी चीज़ें थी वो सेलर के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा देखी जाती थी. नाउ इट हैज़ बीन शिफ्टेड टू बायर्स मार्केट. अर्लियर द सप्लायर or service provider dictated the dimensions of a transaction. Price usually determined by a cost plus approach. मतलब ये this is the scenario which was happening earlier. Price used to be determined by cost plus approach. Response time determined by supplier. Quality determined by service provider या product provider. Performance was also determined by dictated to the customer. मतलब performance was dictated to the customer. From a seller's market to buyer's market. Now today business environment is that of a buyer's market. This trend is a result of international transition and international transitions and macroeconomic, technological, political and social changes. These are the factors. This environment is characterized by globalization of world economy, fierce competition among organization within the and or across countries. मतलब अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है, कंपटीशन आ गया है, ग्लोबल एक्सेस capacities in production, services and in some areas of development. Using new managerial methods. Now methods, अब मार्केट में बहुत से मैनेजरियल मेथड्स आ गए हैं, यूज़ होने लगे हैं. अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा एंड नॉलेज. ना अब क्या है, जो डेटा और नॉलेज है वो बहुत ईजिली अवेलेबल और एक्सेसिबल हो गया है. टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एंड सर्विसेज. और अब मटेरियल एंड सर्विसेज टाइमली अवेलेबल हो जाते हैं. डेटा एंड नॉलेज अब ईज़िली अवेलेबल हो जाता है. ईज़ ऑफ ग्लोबल ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन. और अब ईज़िली सब लोग ट्रैवल कर लेते हैं, इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बढ़ गई हैं. द चैलेंज फॉर बिजनेसेस टुडे इज़ टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स. अब क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना एक चैलेंज हो गया है थ्रू द एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ऑफ देयर प्रोसेसेस. अब क्या है, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की ज़रूरत है. Therefore, in this chapter, we first added the cost of quality, total quality management, and then focus on supply chain management along with other modern concepts. तो इस चैप्टर में पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, फिर हम पढ़ेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड फिर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ेंगे. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. The concept of cost of quality has been around for years, many years. मतलब ये पुराना concept है. Dr. Joseph M. Juran in 1951 in his quality control handbook. मतलब उनकी कोई बुक थी, quality control handbook. उसमें ये COQ का concept था. That included a section on COQ. And then Mr. Philip B. Crosby in his book Quality is Free has popularized the COQ concept. और इन्होंने अपनी बुक क्वालिटी इज़ फ्री में इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया है. उसके बाद क्वालिटी इज़ कंसर्न विद कन्फर्मेशन कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन. कन्फॉर्मेंस क्या होता है कि
मतलब कोई एक कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं, हमको अपने प्रोडक्ट में उनको इंक्लूड करना है। अगर वो हमने इंक्लूड कर रखा है तो वो कंफर्म कर रहा है, और अगर वो नहीं इंक्लूड कर रखा है तो वो नॉन कंफॉर्मेंस हो गया। एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यू फॉर मनी। कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करना है और हमें ऐसे प्रोडक्ट्स देना है जो कि वैल्यू फॉर मनी हो। रिकग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज करना है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस के अंदर। द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कन्फॉर्मेंस एंड द कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल और नॉन कन्फॉर्मेंस इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ COQ। तो COQ में हम 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या देखेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल, ये 2 चीज़ें हम COQ में पढ़ेंगे। इट इज़ द सम ऑफ द कॉस्ट रिलेटेड टू प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स एंड द कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू अकरेंस ऑफ डिफेक्ट्स। तो ये क्या है कि कॉस्ट रिलेटेड टू प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स, मतलब हम वो जो कॉस्ट हम लगाते हैं प्रिवेंट करने में, डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए और डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, उन सारी कॉस्ट को जोड़ना है किससे, कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू अकरेंस ऑफ डिफेक्ट्स। और अगर डिफेक्ट्स आ गई है उसके बाद अगर हमें उसको सही करने में अगर कोई कॉस्ट लगानी पड़ रही है, वो वाली कॉस्ट, इन दोनों कॉस्ट को जोड़ते हैं। व्यूज रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। इन द पास्ट इट वॉज अज्यूम दैट, मतलब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को लेकर क्या क्या व्यूज़ हैं। पहले क्या होता था कि इंक्रीज क्वालिटी इज़ एकम्पनीड बाय इंक्रीज कॉस्ट। पहले ये मान के चलते थे कि अगर हम क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। हायर क्वालिटी मीन्स हायर कॉस्ट। टुडे व्यू ऑफ क्वालिटी कॉस्ट अमंग प्रैक्टिशनर्स सीम्स फॉल इनटू 3 कैटेगरीज। अब क्या है, 3 कैटेगरीज के व्यूज़ हैं, प्रैक्टिशनर्स की 3 कैटेगरीज के व्यूज़ बनते हैं अब। हायर क्वालिटी मीन्स हायर कॉस्ट, मतलब एक व्यू हो गया हायर क्वालिटी मीन्स हायर कॉस्ट, दूसरा व्यू हो गया द रिजल्टेंट सेविंग्स आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी। और तीसरा हो गया क्वालिटी कॉस्ट आर दोज इनकर्ड इन एक्सेस ऑफ दोज दैट वुड हैव बीन इनकर्ड इफ प्रोसेस वॉज बिल्ड और सर्विस परफॉर्म्ड एग्जैक्टली राइट द फर्स्ट टाइम। तो हायर क्वालिटी मीन्स हायर कॉस्ट। क्वालिटी एट्रीब्यूट सच एज परफॉर्मेंस एंड फीचर्स कॉस्ट मोर इन टर्म्स ऑफ लेबर, मटेरियल, डिज़ाइन एंड अदर कॉस्टली रिसोर्सेज। मतलब क्वालिटी को अगर हमें बढ़ाना है तो उसमें कुछ हम परफॉर्मेंस और फीचर्स को ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हमारा लेबर, मटेरियल एंड डिज़ाइन, ये सारे कॉस्ट, और अगर हम कुछ और रिसोर्सेज ऐड कर रहे हैं क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, तो इन सब की कॉस्ट बढ़ेगी। द एडिशनल बेनिफिट्स विच आर गेन फ्रॉम इम्प्रूव्ड क्वालिटी डू नॉट कंपनसेट फॉर द एडिशनल एक्सपेंसेस। अगर हम कुछ एडिशनल बेनिफिट्स ऐड कर रहे हैं, गेन फ्रॉम इम्प्रूव्ड क्वालिटी डू नॉट कंपनसेट द एडिशनल एक्सपेंसेस, मतलब अगर हमें बेनिफिट्स बढ़ाना है तो हमें एक्सपेंसेस भी बढ़ाने पड़ेंगे ना। एक व्यू ये है कि अगर हम ज़्यादा क्वालिटी दे रहे हैं, बेनिफिट्स अगर हम एडिशनल दे रहे हैं, तो फिर हमें एक्सपेंसेस भी बढ़ानी पड़ेगी, एक्सपेंसेस कम नहीं कर सकते हैं हम। द रिजल्टेंट सेविंग्स आर ग्रेटर दैन द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी। डेमिंग ने कहा है, उन्होंने इस व्यू को प्रमोट किया है, which is still widely accepted in Japan. जापान इस व्यू को वाइडली एक्सेप्ट करता है। द सेविंग्स रिजल्ट फ्रॉम लेस रीवर्क। द सेविंग्स रिजल्ट फ्रॉम लेस रीवर्क, स्क्रैप एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डिफेक्ट्स। मतलब इनका कहना है कि हम ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करें, ऐसा प्रोसेस करें कि हमें उसमें रीवर्क ना करना पड़े, या स्क्रैप ज़्यादा ना निकले, या अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड डिफेक्ट्स को सही करने के लिए अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ना करने पड़े, उससे सेविंग्स करना चाहिए हमें। जापान
Japanese firms made continuous improvement using this philosophy. Japanese firms इस philosophy को यूज़ करके continuous improvement करती रहती हैं. तो मतलब इनका कहना है कि हम ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करें जिसमें कि हमें रीवर्क ना करना पड़े, दोबारा से कुछ काम ना करना पड़े, स्क्रैप ज़्यादा ना निकले और डायरेक्ट एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड, डिफेक्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस ना करने पड़े. तो हमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, मतलब अपने प्रोसेस या परफॉर्मेंस को अच्छा करना है. Quality costs are those incurred in excess of those which would have been incurred if product was built exactly right the first time. हम फर्स्ट टाइम जैसे प्रोडक्ट को या सर्विस को फर्स्ट टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं तब जो हमारी कॉस्ट आती थी और उसके बाद आज जो कॉस्ट आ रही है ना, अगर उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, अगर कॉस्ट बढ़ गई है हमारी, तो अगर वो बढ़ी है तो दैट कॉस्ट इज़ नोन एज क्वालिटी कॉस्ट. कि अगर हमें पहले मतलब फर्स्ट टाइम हमने प्रोडक्ट को जब बनाया था तब वो जिस कॉस्ट में बनी है और आज हमें उसे सेल करने में अगर ज़्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है या कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं तो वो जो कॉस्ट है वो क्वालिटी कॉस्ट है. दिस व्यू इज़ हेल्ड बाय एडहेरेंट्स ऑफ TQM फिलॉसफी. मतलब TQM फिलॉसफी को जो लोग मानते हैं उनका ये व्यू है. Here not only direct costs are included but also those resulting from loss of customers. मतलब कस्टमर्स अगर हमारे लॉस हो गया, कस्टमर चले गए हैं, कॉम्पिटिटर्स ने ले लिया है, या लॉस इन मार्केट शेयर में हमारा लॉस हो गया है, या कुछ हिडन कॉस्ट वगैरह लग रही है उसका हमें पेमेंट करना पड़ रहा है. द फोरगोन अपॉर्चुनिटीज़, अगर मतलब हम फोरगोन अपॉर्चुनिटीज़ को भी कंसिडर करें तो वो जो कॉस्ट बढ़ती है, not foregone opportunities not identified by modern cost accounting system ना, ये वाली जो कॉस्ट को अगर हम कंसिडर कर लें, जो मतलब कस्टमर का लॉस हो रहा है, मार्केट शेयर हमारा जा रहा है, हिडन कॉस्ट हमारी इतनी पड़ रही है, फॉरगोन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सब को अगर हम कंसिडर करें तो वो हमारी क्वालिटी कॉस्ट होती है. ऐसा TQM फिलॉसफी के एडहेरेंट्स का मानना है. इन्होंने कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, Mr. Philip B. Crosby in his book Quality is Free referred to the COQ cost in two broad categories, namely price of conformance and price of non-conformance. These two can be bifurcated further into prevention cost and appraisal cost, and internal and external failure cost. Hence, COQ is often referred as prevention, appraisal and failure cost, failure model. In the word PAF model, in the words price of conformance is known as cost of good quality. Price of conformance is known as cost of good quality, and price of non-conformance is termed as cost of poor quality. Prevention cost, the cost incurred for preventing the poor quality of product and service may be termed as prevention cost. Now, these costs are incurred to avoid क्वालिटी प्रॉब्लम. दिस कॉस्ट आर इंकर टू अवॉइड क्वालिटी प्रॉब्लम. मतलब क्वालिटी को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हम प्रिवेंशन कॉस्ट यूज़ करते हैं. दे आर प्लान्ड एंड इंकर्ड बिफोर एक्चुअल ऑपरेशन एंड आर एसोसिएटेड विद द DIM, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये क्या, बिफोर एक्चुअल ऑपरेशंस. These are planned and incurred before actual operations and are associated with the design, implementation and maintenance of quality management system. Prevention costs try to keep failure and appraisal cost to a minimum. अब अगर हम प्रिवेंशन कॉस्ट को अगर हम प्रिवेंशन कॉस्ट अगर हमारी लग रही है तो उससे क्या होगा, फेलियर कम होगा और अप्रेजल कॉस्ट भी हमें कम लगानी पड़ेगी. एग्जाम्पल्स क्या हैं प्रिवेंशन कॉस्ट के? क्वालिटी इंजीनियरिंग. एग्जाम्पल इंक्लूड्स द कॉस्ट फॉर क्वालिटी इंजीनियरिंग. हम जो प्रोडक्ट इंजीनियर करा रहे हैं, बना रहे हैं, वो क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, क्वालिटी इंजीनियरिंग कराएं. क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दें, मतलब क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दें. ऐसे ही बिना मतलब की ट्रेनिंग नहीं, क्वालिटी ट्रेनिंग दें. क्वालिटी प्लानिंग होनी चाहिए हमारी, क्वालिटी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, क्वालिटी ऑडिट्स होनी चाहिए.
क्वालिटी सर्कल्स होने चाहिए। मतलब क्वालिटी ऑडिट तो हम समझ रहे हैं, क्वालिटी सर्कल्स क्या है कि कुछ सर्कल्स बना दिए जाते हैं जो कि क्वालिटी को चेक करते हैं। सर्कल्स मतलब कुछ लोगों का मेंबर्स का ग्रुप बना देते हैं, वो क्वालिटी चेक करते हैं। फील्ड ट्रेल्स और डिज़ाइन रिव्यूज़, डिज़ाइन के हम रिव्यूज़ ले लें। और प्रोसेस इंजीनियरिंग, सप्लायर इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, evaluation and selection, preventive equipment maintenance, testing of new materials, education of suppliers। कब इनकर होती है? ये तब प्लान की जाती है और इनकर की जाती है बिफोर एक्चुअल ऑपरेशन। मतलब ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है उसके पहले ही हम चेक करेंगे कि क्वालिटी इंजीनियरिंग हमें प्रोवाइड करना है, क्वालिटी ट्रेनिंग देनी है एम्प्लॉयज़ को, क्वालिटी प्लानिंग हम जो प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, प्लानिंग, रिपोर्टिंग, ऑडिट और क्वालिटी सर्कल्स वगैरह हम इसमें कॉस्ट लगाएंगे अपनी। और फील्ड ट्रायल्स चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट का क्या मार्केट शेयर हो सकता है, क्या कस्टमर्स हो सकते हैं। डिज़ाइन रिव्यूज़, जो भी हम प्रोडक्ट बनाने चाह रहे हैं उसके डिज़ाइन का हम रिव्यू ले लें, उसको अच्छे से उस पर हमें अपनी कॉस्ट लगानी है डिज़ाइन रिव्यू में। प्रोसेस इंजीनियरिंग में हमें कॉस्ट लगानी है कि हमें कौन कौन से प्रोसेस से उस प्रोडक्ट को निकालना है, क्या क्या प्रोसेस होगा, उसकी इंजीनियरिंग करानी चाहिए। सप्लायर इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, हम पहले से ही सप्लायर्स को अच्छे से इवैल्यूएट करके ही सेलेक्ट करेंगे जो भी हमें रॉ मटेरियल्स या जो भी मटेरियल्स का यूज़ करके प्रोडक्ट को तैयार करना है। प्रिवेंटिव इक्विपमेंट मेंटेनेंस, और जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जो फैक्ट्री में जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ होंगे उनका भी मेंटेनेंस वगैरह, प्रिवेंटिव चेकअप वगैरह करना ज़रूरी है। टेस्टिंग ऑफ न्यू मटेरियल्स, और अगर न्यू मटेरियल्स आ रहे हैं उसको टेस्टिंग वगैरह करना अच्छे से ज़रूरी है। एजुकेशन ऑफ सप्लायर्स, और सप्लायर्स को भी एजुकेशन प्रोवाइड कराइए जिससे कि वो आपको रिक्वायर्ड मटेरियल, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा सके। उसके बाद अप्रेजल कॉस्ट क्या है? द नीड ऑफ कंट्रोल इन प्रोडक्ट एंड सर्विस टू एंश्योर हाई क्वालिटी लेवल्स इन ऑल स्टेज, conformance to quality standards and performance requirement is appraisal cost। तो appraisal cost क्या है कि वो कॉस्ट जो कि हाई क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है ना ऑल स्टेजेस में, और कन्फॉर्मेंस टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हमें जो प्रोडक्ट जिस स्टैंडर्ड का, जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड हमने एक सेट कर रखा है, हमें उसी स्टैंडर्ड का ही प्रोडक्ट चाहिए, उससे कंफर्म करना चाहिए हमारा प्रोडक्ट। और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, और जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है उसको वो मीट होनी चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए, हमारी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए और क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स कंफर्म होने चाहिए, और हर एक ऑल स्टेजेस पे हमारी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। इसको करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो अप्रेजल कॉस्ट होती है। These are costs associated with measuring and monitoring activities related to quality। क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मेजर और मॉनिटर करने के लिए ये कॉस्ट लगती है। इज़ incurred टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ कन्फॉर्मेंस टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। इससे हमें पता चलता है कि कितना, मतलब जो हमने क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड बना के रखा था, जो रिक्वायरमेंट्स थी हमारी, उससे कितना कंफर्म कर रही है, कितना उस क्वालिटी को हम मीट कर पा रहे हैं। मेजरिंग, इवैल्यूएटिंग एंड ऑडिटिंग, मतलब हमें उसमें चेक कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं और ऑडिट कर रहे हैं। दे आर एसोसिएटेड विद द सप्लायर्स एंड कस्टमर्स इवैल्यूएशन ऑफ परचेज मटेरियल, processes, products and services to ensure that they are as per the specifications। तो हम सप्लायर और कस्टमर सबके इवैल्यूएशन को चेक करेंगे। परचेज मटेरियल्स, कस्टमर्स इवैल्यूएशन ऑफ परचेज मटेरियल, कस्टमर क्या कह रहा है, जो भी उसने मटेरियल परचेज किया है। हम प्रोसेस को चेक करेंगे, हम प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे और सर्विसेज को चेक करेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो रहे हैं। ये जो कॉस्ट, ये सब जो चेकिंग, टेस्टिंग या ऑडिटिंग कॉस्ट होती है क्वालिटी को मीट करने के लिए,
इसको कहते हैं अप्रेजल कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट हो गया कि जो हमने पहले से जो हमें स्टेप्स उठाने हैं ऑपरेशंस शुरू होने के पहले के जो भी स्टेप्स हैं जिससे कि हम क्वालिटी मेंटेन कर रखें। और अप्रेजल कॉस्ट क्या है कि हर स्टेज में ये ड्यूरिंग द प्रोसेस चलता है ना। इसमें एग्जाम्पल क्या है, फील्ड टेस्टिंग, फील्ड में टेस्टिंग, उसके बाद इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग मटेरियल, और मटेरियल्स को इंस्पेक्ट और टेस्ट करने की जो कॉस्ट आएगी, और पैकेजिंग इंस्पेक्शन की जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली पैकेजिंग वगैरह उसकी है कि नहीं है, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टेबल है कि नहीं है प्रोडक्ट, प्रोसेस एक्सेप्टेंस, जो हमारा प्रोसेस है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, मतलब इन सब की क्वालिटी मेंटेन्ड है कि नहीं है। मेजरमेंट, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट इक्विपमेंट है, मतलब जो भी इक्विपमेंट्स हमें यूज़ करने हैं प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए, उन सब का इक्विपमेंट्स का इंस्पेक्शन और टेस्टिंग वगैरह करने के लिए जो कॉस्ट आती है। और आउटसाइड सर्टिफिकेशन, और अगर सर्टिफिकेशन का नीड है तो वो सब चेक करने के लिए। तो ये सब क्या है, अप्रेजल कॉस्ट होती है हमारी। ये भी क्वालिटी मेंटेन के लिए होती है, और प्रिवेंशन कॉस्ट भी हमारी क्वालिटी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए होती है। इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या है? इंटरनल फेलियर कॉस्ट एसोसिएटेड विद डिफेक्ट्स फाउंड before the customer receives the product or services. Defects found before the customer receives the product और सर्विसेज, मतलब ये प्रोडक्ट बन गया है लेकिन अभी कस्टमर को मिला नहीं है। इंटरनल फेलियर कॉस्ट आर इनकर्ड टू रेमेडी डिफेक्ट्स डिस्कवर्ड बिफोर द प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। कस्टमर को डिलीवर होने के पहले अगर कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसको सही करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो फेलियर कॉस्ट है। दीज कॉस्ट अकर व्हेन द प्रोडक्ट इज़ नॉट एज पर द डिज़ाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा है। दीज आर द कॉस्ट दैट आर कॉज्ड बाय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नॉट कन्फॉर्मिंग टू रिक्वायरमेंट्स और कस्टमर्स नीड। ये नॉन कन्फॉर्मिंग, नॉट कन्फॉर्मिंग मतलब जो भी रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की या यूज़र की जो भी नीड्स हैं उसको कन्फर्म नहीं कर रहा है, मतलब उसको रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहा है हमारा प्रोडक्ट। एंड आर फाउंड बिफोर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, और अगर हमको ये जो भी डिफेक्ट है वो हमें डिलीवरी के पहले पता चल गई है टू एक्सटर्नल कस्टमर्स। डेफिशिएंसीज आर कॉज्ड बोथ बाय एरर्स इन प्रोडक्ट्स एंड इनएफिशिएंसीज इन प्रोसेस। तो ये डेफिशिएंसीज क्यों होंगी? एरर्स इन प्रोडक्ट में कुछ एरर हो गया है और प्रोसेस में कुछ इनएफिशिएंसीज हो गई है, इनकी वजह से ये डेफिशिएंसीज आ सकती हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे स्क्रैप ज़्यादा हो गया हमारे प्रोसेस में, स्क्रैप निकल रहा है, रीवर्क करना पड़ रहा है, मतलब कुछ ऐसा डिफेक्ट था कि हमको दोबारा काम करना पड़ रहा है, उसको रीडिज़ाइनिंग करनी पड़ रही है, रीटेस्टिंग करना पड़ रहा है, डाउन टाइम, मशीन बंद हो गई है कुछ देर के लिए, डाउन टाइम हो रहा है, तो इससे लॉस हो रहा है हमारा। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या है? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आर इनकर्ड टू मेडिकेट डिफेक्ट्स डिस्कवर्ड बाय कस्टमर। अब ये क्या है? जो कस्टमर ने कुछ डिफेक्ट्स डिस्कवर किए हैं उसको ठीक करने के लिए अगर कुछ कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ रही है तो वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। दीज कॉस्ट अकर्स व्हेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट फेल टू रीच डिज़ाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर नॉट डिटेक्टेड अंटिल आफ्टर ट्रांसफर। अगर मतलब इंटरनल फेलियर कॉस्ट वो थे जो कि पहले ही डिटेक्ट हो गए हैं, कस्टमर के पास पहुंचने के पहले ही अगर कुछ डिफेक्ट डिटेक्ट हो गए हैं तो वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है। लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच चुका है, उसके बाद कुछ डिफेक्ट आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए अगर मुझे कुछ कॉस्ट उठानी पड़ रही है तो वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होती है। फेल टू रीच डिज़ाइन quality standards are not detected until after transfer to the customer. After the product or service is delivered and then the defect is found, then it is an external failure. Further, external failure costs are costs that are caused by deficiencies found after delivery of product and services to the external customers which lead to customer dissatisfaction. इसमें क्या है? customer dissatisfaction
होता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इस कॉस्ट के? कॉस्ट ऑफ रिकॉल्स, मान लो कुछ बैच हमारा बना, उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया, मान लो 50 या जितने भी नंबर ऑफ बैच का कोई मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का कोई बैच था, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो हमको वो रिकॉल करके वापस से कस्टमर से बुलानी पड़ रही है, उसकी कॉस्ट पड़ रही है। लॉस सेल्स ड्यू टू पुअर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उसकी वजह से अगर कुछ सेल का लॉस हो गया। रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, हमें गुड्स रिटर्न मंगाने पड़ रहे हैं या कुछ अलाउंसेस देने पड़ रहे हैं, या वारंटीज़ का जो एक्सपेंस है, रीपेड, प्रोडक्ट लायबिलिटी, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, लॉस मार्केट शेयर, कस्टमर सपोर्ट। द टोटल क्वालिटी कॉस्ट आर देन द सम ऑफ ऑल दीज कॉस्ट। तो टोटल क्वालिटी कॉस्ट क्या है कि ये सारी कॉस्ट को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल क्वालिटी कॉस्ट हो जाएगा। तो क्योंकि हम इसको क्वांटिफाई कर पा रहे हैं, ये प्लस ये इज इक्वल्स टू ये, तो ये क्वांटिटेटिव कॉस्ट होती है हमारी। Conformance is a quantitative measure of COQ. In its simplest form, COQ can be calculated in terms of efforts, ना hours per day के टर्म्स में हम इसे निकाल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। A better approach will be to calculate COQ in terms of money, converting the effort into money and adding any other tangible cost like test environment setup. A better approach will be to calculate COQ in terms of money. यहाँ पे हम इफ़र्ट के बेस में सिंपली हम लोग इफ़र्ट के बेस में कैलकुलेट कर सकते हैं, मनी के बेस में भी कर सकते हैं ना। एंड एडिंग एनी अदर टेंजिबल कॉस्ट लाइक टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, अगर मतलब कुछ भी कॉस्ट ऐड हो रही है तो उसको ऐड कर दें। पहले जो भी कॉस्ट है, इफ़र्ट्स इनटू मनी, कन्वर्टिंग द इफ़र्ट्स इनटू मनी। कितने आवर्स लगा? 6 आवर्स लगा, और पर आवर क्या चार्जेस हैं? 100 रुपीज़ पर आवर है, तो 600 रुपीज़ का हो गया। उसके बाद अगर कुछ कॉस्ट लगी, एनी अदर टेंजिबल कॉस्ट अगर उसमें लगी, तो हम मान लो 200 रुपये की अलग से कॉस्ट लगी, तो हमारी 800 रुपये की कॉस्ट हो गई। टू एंश्योर इम्पार्शियलिटी, एन एक्सटर्नल पर्सन, से द अकाउंटेंट, may determine the cost of quality of a project or product rather than a person who is a core member of the project or product team, say someone from the accounts department. तो impartiality को maintain करने के लिए हम कोई एक्सटर्नल अकाउंटेंट को रख सकते हैं जो कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बता सके कैलकुलेट करके। ज़रूर इस मतलब हमें अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पर्सन को ही नहीं रखना है, हमको किसी बाहरी इंसान को, किसी अकाउंटेंट को रखना पड़ेगा।